روزہ کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں یعنی کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 4 ہے، پیج 592، اور شرح نووی جو مسلم کی شرح ہے اس کے والیوم 4 پیج 200 پر ہے۔ روزے کے 3 مرتبے ہیں، ایک تو عام لوگوں کا روزہ ہے اور دوسرے خاص لوگوں کا اور ایک خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ جہاں تک عام لوگوں کا روزہ ہے تو پیٹ کو اور شرمگاہ کو یہ روزہ روکتا ہے قضائی شہوت سے، یعنی کھانے سے اور شہوت سے انسان روکتا ہے، اور جہاں تک خاص لوگوں کا روزہ ہے تو انہیں بری نظر ڈالنے سے روکتا ہے، زبان کی حفاظت کرواتا ہے، ہاتھ کی پاؤں کی حفاظت کرواتا ہے، اسی طرح سے کانوں اور آنکھوں کی اور سارے ہی اعضاء کی حفاظت کرواتا ہے کہ انسان گناہ سے بچا رہے۔ اور جہاں تک خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے تو یہ روزہ ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر کے وسوسے بھی دور ہوتے ہیں اور دنیا کی جو فکریں لاحق ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، تو انسان خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف نظر لگاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے اور اللہ کی خوشی کی خاطر ہی زندگی بتاتا ہے۔ یہ روایت مختصر منہاج القاصدین کی ہے، پیج نمبر 44۔ روزہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے ربی، کہ اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوہ، کہ میں نے اسے کھانے سے اور خواہشات سے روک رکھا تھا، تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم، میں نے اس کو نیند سے روکا رات کو، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 174، اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 554۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے ایسے کام ہیں، نیکی اور احسان کے کام جنہیں انجام دیا جا سکتا ہے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ ان کاموں کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیکی کے کاموں کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں کی رغبت، شوق اور حرص عطا فرمائے اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا کام ہے روزہ۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے 1901 اور مسلم کی روایت کا نمبر ہے 1781۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ رب العزت نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسرا کام ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے مال سے محروم لوگوں پر خرچ کرنا، انہیں کھانا کھلانا، اناج فراہم کرنا، لباس پہنانا، ان کی دوا کا انتظام کرنا، قرض داروں کا بوجھ اتارنا، بے سہاروں کا سہارا بننا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مال دینے میں سخی تھے، اور سب وقتوں سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ ہر حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ سے ملتے تو آخر مہینے تک آپ انہیں قرآن سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے اس وقت آپ مال کے دینے میں چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے سخاوت کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے 3220، مسلم کی روایت 6009 نمبر پر۔ لہذا رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں یہ اہتمام کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا نیکی کا کام ہے رات کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں جاگتے تھے اور آخری 10 راتوں میں اپنے گھرانے کے دیگر افراد کو بھی جگاتے تھے۔ مسلم کی 2787 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی،
ईमान और सवाब की नीयत के साथ उसके अगले तमाम गुनाह मुआफ हो जाएंगे। बुखारी की 2009 नंबर और मुस्लिम की 1779 नंबर रिवायत से पता चलता है। सहाबे कराम और ताबईन भी रातों के कयाम का खास एहतमाम करते थे। हर दौर के नेक अफराद इसका एहतमाम करते रहे हैं। चौथा अहम काम तिलावत कुरान मजीद है। रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद नाजिल हुआ, इसलिए रमजान और कुरान का गहरा ताल्लुक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रसूलुल्लाह का इरशाद नकल करते हैं कि कयामत के दिन रोजा और कुरान दोनों शफाअत करेंगे। कुरान कहेगा, अल्लाह रात भर इसको मैंने आराम से रोके रखा, मेरी शफाअत कबूल फरमाइए। रोजा अर्ज करेगा, या अल्लाह मैंने इसको दिन में खाने और ख्वाहिश नफ्स से रोके रखा, मेरी शफाअत कबूल फरमाइए। फिर दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। सही तरगीब की रिवायत है 984 और मुस्नद अहमद की रिवायत वॉल्यूम 2 पेज 184 पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में आम दिनों से ज्यादा तिलावत कलाम पाक करते थे। इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौरा कुरान करना, सहाबे कराम और ताबईन का कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करना हमारे लिए मिसाल है कि रमजानुल मुबारक में करने वाले अहम कामों में कुरान मजीद की तिलावत कितनी अहमियत की हामिल है। तो रमजानुल मुबारक में करने वाले कामों में रात के कयाम में तिलावत करना, बगैर कयाम के तिलावत करना, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ समझकर पढ़ना आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा अहमियत रखता है। तिलावत में तवज्जो और तदब्बर पसंदीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो और तदब्बर से कुरान मजीद पढ़ते थे और उससे असर कबूल करते थे। तिरमिज़ी की 3297 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है। अब देखिए, रमजान के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से हज़रत जिब्रील दौरा कुरान करवाने के लिए आते थे। इसलिए कोई चाहे हर बरस दौरा कुरान कर चुका हो, रमजान में उसे दौरा कुरान जरूर करना चाहिए। तिलावत कुरान के हवाले से अगर हम देखना चाहें, सहाबा कराम में से कुछ लोग आम दिनों में 3 दिन में कुरान मजीद खत्म कर लेते थे, कुछ 7 दिन में, कुछ 10 दिनों में। फजीलत वाले महीने में इससे भी ज्यादा पढ़ना जायज है। अल्लाह ताला हमें रात और दिन के औकात में तिलावत की तौफीक अता फरमाए, हमें तिलावत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद को हमारे लिए कब्र की वहशतों को दूर करने वाला साथी बनाए, इसके जरिए हम पर रहमतें नाजिल फरमाए और हमसे राजी हो जाए, आमीन। 5वां नेकी का काम है रोजे अफ्तार करवाना। रमजानुल मुबारक के फजीलत वाले कामों में से एक काम रोजे अफ्तार करवाना। ज़ैद बिन खालिद जुहनी ने रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोजेदार का रोजा खुलवाए या मुजाहिद को जिहाद के लिए तैयारी करवाए, उनके लिए रोजेदार के और मुजाहिद के बराबर अजर होगा। शोबुल ईमान की रिवायत है 3953। छठी चीज है एतकाफ। रमजान मुबारक की खुसूसी इबादत है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत की गर्ज से मस्जिद में रहना एतकाफ कहलाता है। एतकाफ में इंसान की भरपूर तवज्जो इसी जानिब रहती है कि अल्लाह राजी हो जाए। रसूलुल्लाह रमजान के आखिरी 10 दिन रात मस्जिद के एक हिस्से में गुजारते थे, आम मामूलात और ताल्लुकात खत्म कर देते थे। वफात तक एतकाफ में बैठना आपका मामूल रहा। आपने इसकी इतनी पाबंदी की कि एक बार आप रमजान में न बैठ सके तो आपने शवाल के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ किया। बुखारी की 2041 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। एतकाफ मजमुआ इबादत है जिसमें इंसान अपने रब से गुनाहों की माफी मांगता है, जिक्र करता है, दुआएं करता है, नवाफिल अदा करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, यकसुई से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहता है, और ये सारे ही काम इबादत हैं। 7वां नेकी का काम रमजान के आखिरी अशरे में खूब मेहनत करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे। इसी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है। आप इस अशरे में खुद भी इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी इबादत करने का हुक्म देते थे। मुस्लिम की रिवायत 2785 से हमें पता चलता है, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इतनी रियाजत करते थे कि इसके अलावा और दिनों में इतनी रियाजत नहीं करते थे। मुस्लिम की 2788 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है। और 8वां काम है लैलतुल कद्र को तलाश करना। रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब की इजाजत से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक।
हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा इस रात में जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से ज्यादा होती है। सिलसिला अहादीस सहीहा 2205 नंबर पर रिवायत हमें मिलती, मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत मौजूद है। इन रातों में अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए ताकि इसकी खैर व बरकत से महरूम न रहें। और लैलतुल कद्र की खास दुआ है। हजरत आयशा फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, आपका क्या ख्याल है कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि शब कद्र कौन सी है तो मैं इसमें क्या विर्द करूं? आपने फरमाया, यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तिरमिज़ी की 3513 नंबर रिवायत है, अल्लाह तू बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला है, मुआफी को तू पसंद करता है, मुझे मुआफ फरमा दे। और नवा काम है उम्रा करना। रमजानुल मुबारक में उम्रा करना फजीलत के कामों में से अल्लाह ताला के घर की जियारत, तवाफ और सफा मरवा की सही करना उम्रा कहलाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज के बराबर है। बुखारी की 1863, नसाई की 2112 और इब्न माजा की 2993 नंबर रिवायत से पता चलता है। और एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दरमियाने गुनाहों के लिए कफारा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मुस्लिम की रिवायत 3289 से पता चलता है। और 10वां अहम काम है कसरत से दुआएं करना। कुरान हकीम में रमजानुल मुबारक की फजीलत और रोजे के मसाइल के दरमियान अल्लाह ताला ने दुआ के लिए तरगीब दिलाई है। अल-बकरा की आयत नंबर 186 है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। इस महीने में खूब दुआएं करने की जरूरत है। एक दूसरे के हक में भी दुआएं करनी चाहिए। मुस्लिम की 6229 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है बद्दुआएं करने से गुरेज करना चाहिए। मुस्लिम की 7515 नंबर रिवायत से पता चलता है 15 नंबर रिवायत से पता चलता है सियाम इस्लाम का चौथा रुकन है। रोजा इंसान के अखलाक पर गहरे असरात मुरत्तब करने वाला है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से नौजवानों के गिरोह को मुखातिब करके ये बात कही थी, या माशर शबाब, ए नौजवानों के गिरोह, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो, क्योंकि रोजा नजर को बचाने वाला और इंसान को पाक दामन रखने वाला है। रोजे की वजह से इंसान खाने पीने से बचता है तो तवक्को की जा सकती है कि इंसान अल्लाह के रोके से भी रुक जाए। रोजे में इंसान रब के ज्यादा करीब होता है। रोजे में इंसान को अल्लाह के बसीर होने का ज्यादा शऊर होता है। रोजे की वजह से इंसान अपनी जिस्मानी ग़िज़ा से खुद को अल्लाह की खुशी की खातिर महरूम करता है। इस वजह से रोजा इंतहाई अहमियत का हामिल है। हाफिज इब्न क़य्यम कहते हैं कि रोजा क्या है, मुत्तकीन की लगाम है, यानी अल्लाह से डरने वालों को ये लगाम देता है। और रोजा जो है अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने वालों के लिए ये ढाल है और नेकोकार लोगों के लिए ये रियाजत है, मुकर्रब लोगों के लिए ये मेहनत है और ये रब्बुल आलमीन के लिए है। सारे अमाल में से रोजे में ये बात सबसे ज्यादा खास है कि इंसान हकीकतन दिल से रोजा रबी के लिए रखता है। रोजे में एक रोजादार अपनी शहवत, खाना पीना अपने माबूद की रजा के लिए छोड़ता है। अपनी महबूब चीजों को, जो चीजें नफ्स को बहुत मरगूब हैं, लजीज चीजों को छोड़ता है, ईसार करता है अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए। रोजा बंदे और उसके रब के दरमियान राज है। इसकी इत्तला दूसरे को नहीं होती, या रब जानता है या बंदा। रोजे में बंदा खाने पीने और शहवत को छोड़कर अपने ऊपर काबू पाने की पोजीशन में आ जाता है, यानी गुनाहों को छोड़ने की पोजीशन में आ जाता है। रोजे की तासीर बहुत अजीब है। ज़ाहिरी आज़ा की हिफाजत होती है और बातनी तौर पर इंसान को कुव्वत मिलती है। इंसान के जिस्म से बहुत सारे फासिद मादे दूर होते हैं और इंसान के शऊर को कुव्वत मिलती है। अगर देखा जाए तो रोजे का असर इंसान के जिस्म और रूह के एक एक हिस्से पर होता है। इसी वजह से रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम
लअल्लकुम तत्तकून, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 है। रोजा क्या है? दरअसल इबादत की नीयत से खाने पीने और बीवी से मुबाशरत करने जैसे अमाल से रुक जाना, यानी इनके अलावा दीगर रोजा तोड़ने वाले उमूर से भी गुरेज करना जरूरी है। तुलुए फजर यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रुके रहने का नाम रोजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, नमाज कायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना, वसौमी रमजान, और रमजान के रोजे रखना। और मुस्लिम की रिवायत में रमजान का रोजा रखना और बैतुल्लाह का हज करना, यानी तरतीब में रिवायात में थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन बात एक ही है कि इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। रोजे का इनकार करने वाला शख्स दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। रमजान के रोजे हर कुदरत रखने वाले गैर माजूर मुस्लिम आकिल बालिग और मुकीम मर्द और औरत पर फर्ज है, जिसे ईमान और सवाब की नीयत से रखना जरूरी है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोजा रखा उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये वो बात है जो इस मौजू से खास तौर पर ताल्लुक रखती कि रोजा जो है एहतसाब के साथ रखना, यानी खालिस होकर रखना, जो है इंसान से कैसे पिछले गुनाह माफ करवा देता है कि इंसान रब के लिए खालिस हो जाता है। इंसान रब के लिए खाना पीना छोड़ता है तो गुनाह भी छोड़ता है, इसी वजह से उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। चुनांचे अगर कोई शख्स बगैर सवाब की नीयत के या दिखावे की खातिर रोजे रखे, या रोजे की हालत में गाली गलोच करे, या लड़ाई झगड़ा और गंदी बातें करे, तो ऐसे लोगों को रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जहन्नुम से ढाल है। चुनांचे रोजे की हालत में कोई बुरी बात न कहे, न लड़ाई झगड़ा करे, न अपनी आवाजें बुलंद करे, और अगर कोई शख्स उसे गाली दे या उससे लड़ाई करे तो कह दे कि मैं रोजे से हूँ। ये रिवायत भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इससे हमें ये पता चलता है कि रोजे में अपनी जुबान की हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोजे की बड़ी फजीलत है। हदीस कुदसी है कि इब्ने आदम के सारे अमाल 2 चंद कर लिए जाते हैं, एक नेकी का सवाब 10 से 700 गुना तक मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजादार मेरी खातिर रखता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, यानी इसकी जज़ा का कोई ताय्युन नहीं है, बदला बहुत बड़ा है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रोजा गुनाहों के खात्मे का सबब भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाजें, जुमे के बाद दूसरा जुमा, रमजान के बाद दूसरा रमजान, अपने बीच के गुनाहों का कफ्फारा है, बशर्त ये कि बड़े गुनाहों से बचा जाए। ये सही मुस्लिम की रिवायत। रोजा क़यामत के दिन रोजादार के लिए सिफारिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। और रोजादार अफ्तार के वक्त अपने रब से मुलाकात के वक्त रोजे की वजह से खुश होंगे। ये सही बुखारी की रिवायत है। और रोजेदार जन्नत में रैयान नामी दरवाजे से दाखिल होंगे, और जब सारे दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद उस दरवाजे से कोई और दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत। और इसी तरह से रसूलुल्लाह ने फरमाया, रोजेदार के मुंह की बू कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से बेहतर होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में 1 दिन का रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे से 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम की आग दूर कर देता। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इसी तरह से जैसे रमजान के रोजे, रमजान के अलावा शवाल के 6 रोजे रखने के सबब पूरे साल के रोजे रखने का सवाब मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजेदार को रोजा अफ्तार करवाया उसे रोजेदार के बराबर अजर मिलेगा, और रोजादार के अजर सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। इस हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इसे हसन और सही कहा। इसी तरह हर महीने 3 रोजे रखना, जैसे अय्याम 20 के रोजे 13, 14 और 15 के, ये सवाब वाला काम है। इसी तरह यौम अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा का, और इसी तरह आशूरा का यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखना, सोमवार और जुमेरात को रोजा रखना मुस्ताहब है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर महीने में 3 दिन का रोजा, और रमजान के रोजे 1 रमजान से अगले रमजान तक ये हमेशा का रोजा है।
और यौम अरफा के रोजे से मुताल्लिक मुझे अल्लाह से उम्मीद है ये अगले और पिछले साल के गुनाहों का कफारा बन जाए। और आशूरा 10 मुहर्रम के रोजे से मुताल्लिक मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये पिछले साल के गुनाहों के कफारा बन जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। और हर महीने के 3 रोजे की तफसीर में हज़रत उमर इब्न खत्ताब, इब्न मसूद और अबू जर से अय्याम बीज यानी 13, 14 और 15 तारीखें चांद की तारीखें, इनका रोजा रखना है। हजरत अली से रिवायत है लैसा सियामु मिनत ताम व शराब, कि रोजा जो है खाने और पीने से रुकना नहीं है, वलाकिन मिनल कज़िब, बल्कि झूठ से रुकना है, वल बातिल, और बातिल से, वल लग़्व, और लग़्व से रुकना है। अल मुसन्नफ की रिवायत है, इब्न अबी शैबा की है, वॉल्यूम 2 है, पेज 422। अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि यकीनन दीन की मजबूती और उसका क़याम जो है सलात और ज़कात से, इन दोनों में फ़र्क नहीं किया जा सकता। और बैतुल्लाह का हज करना, रमजान के रोजे रखना, ये नेक अमाल में से, और सदका और रोजा रखना जो है ये सालेह तरीन अमाल में से। ये रिवायत भी अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की है, वॉल्यूम 11 है, पेज 46। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो फिर चाहिए कि कानों का भी रोजा रखो, अपनी आंखों का भी रोजा रखो, अपनी जुबान का भी रोजा रखो झूठ से और गुनाहों से, और अपने खादिम को यानी अपने मुलाजिम को थोड़ा सा एज दो, उसको भी थोड़ी सी सहूलत दो। और तुम पर लाजिम है वकार और सकीनत। जिस दिन तुम रोजा रखो उस दिन वकार और सकीनत का खास तौर पर ख्याल रखो। और कहते हैं कि अपने रोजे वाले दिन को और अफ्तार वाले दिन को एक बराबर ना गुजारो। रोजे वाला दिन ज्यादा अहमियत का हामिल है। उस दिन चूंकि रोजा रखा है तो रोजे के असरात नजर आने चाहिए। बुखारी की रिवायत का नंबर है 1947। हजरत अबी जर से रिवायत है जब तुम रोजा रखो तो इसकी हिफाजत करो जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, वॉल्यूम 2, पेज 421। ज़हाक कहते हैं कि सबसे पहला रोजा हजरत नूह ने रखा, फिर इसी तरह से लोग रोजे रखते रहे, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रोजे रखने के लिए कहे गए, इब्तिदा में 3 दिन के रोजे थे और इशा तक थे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रोजा रखा करते थे पहले। इब्न कसीर की रिवायत है, वॉल्यूम 1 है, पेज 214। इससे मुराद ये कि इब्तिदा में रोजे फर्ज नहीं थे, हर महीने 3 दिन के रोजे रखने होते थे। और अगर देखा जाए तो 36 रोजे बनते हैं। बात अब भी वही है, 30 रोजे रमजान के और 6 शवाल के, यानी हिसाब किताब अल्लाह ने पूरा रखा है, ये पूरे साल के रोजों के बराबर है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये जो बात कही गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो थे वो इशा तक रोजा रखते थे, इससे मुराद ये है कि जैसे इब्तिदा में रोजा रखने के बारे में चूंकि अहकामात वाज़ेह नहीं थे, अभी रोजे की फर्जियत का हुक्म नहीं आया था, लिहाजा लोग जब रोजा रखते थे तो रोजा अफ्तार करने के बाद जब तक जागते रहते थे कुछ खा पी सकते थे, अगर कोई सो गया फिर नहीं खा सकता था। यानी जैसे फर्ज करें किसी ने अफ्तारी की और खाना खाने से पहले वो सो गया, यानी दोबारा खाना पीना नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह कर दिया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का रोजा, बाकी औकात में आप खा पी सकते हैं। और बगवी कहते हैं कि अल्लाह के इस कौल के बारे में अल-हामिदून अस्साइहून, अल्लाह की हमद करने वाले, और अस्साइहून से मुराद रोजेदार है, क्योंकि रोजेदार जो हैं वो दरअसल अल्लाह की खातिर अपना सब कुछ तर्क कर देते हैं। और सियाहत करने वाला जैसे तर्क करता है ऐसे रोजा रखने वाला भी अपना सब कुछ तज देता है। और बगवी कहते हैं ये जो कौल है अल्लाह ताला का, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या लोगो जो ईमान लाए हो रोजे और नमाज से मदद लो। तो इनका ख्याल है कि रमजान चूंकि सब्र का महीना है और सब्र की असल जो है वो यही है कि रोजा रखा जाए, लिहाजा इससे मुराद रोजा है। वल्लाहु आलम। माह रमजान की खुसूसियत के हवाले से खास बातें कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक दूसरी रिवायत में रमजान आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की। इस महीने में ईमान और सवाब की नीयत से कयाम करने के बायस पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रमजान की 3 रातों 23, 25 और 27 में आपने सहाबा कराम को कयामुल लैल भी करवाया, यानी जिसे हम तरावी कहते हैं, आपने बाजमात पढ़ाई। ये तरावी 8 रकत थी और वित्र के साथ ये 11 रकात थी। जितने दिन आपने जमात करवाई वो इतनी ही थी। इसकी सराहत हजरत जाबिर की रिवायत से हमें मिलती है और हजरत आयशा की रिवायत में भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। इस महीने में लैलतुल कद्र भी है, जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर है। और शब कद्र में ईमान और सवाब की नीयत से कयाम करने का सवाब बहुत ज्यादा है, इसके बायस पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसी तरह से रमजान में सदका करना सबसे बेहतर सदका है। रमजान में दूसरे महीनों की बनिस्बत
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा सदका और खैरात करते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात से हमें पता चलता है। और रमजान में उम्रा करने का सवाब हज के बराबर है। एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में उम्रा करने का सवाब मेरे साथ हज करने के बराबर है, यानी गोया रसूलुल्लाह के साथ हज किया। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रमजान माह कुरान है। इसी महीने में कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने लौह महफूज से उतार कर आसमाने दुनिया पर भेज दिया था और वहीं से फिर मुसलसल ये नाजिल होता रहा। इसी के बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरआन नाजिल किया गया। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 है। रमजान जिक्र और दुआ का महीना। इस महीने में दुआओं का खूब एहतमाम करना चाहिए और खास दुआ का वक्त अफ्तारी का वक्त, इस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से नजात अता फरमाते हैं, की आग से नजात अता फरमाते हैं।